Hello everyone, this is my PYQ discussion series. I told you I prepare for exams, for UPSC exam, taking into consideration all the UPSC related papers, matlab NDA, CDS, CAPF, whatever comes in hand. So this is my first paper which I'll be revising. If anybody is watching, well and fine. If not, then also I'm doing this video for my revision purpose. And if anybody is watching, thank you so much for your support. Let's start with the first question. This is a UPSC CDS 2024 question paper. We have two papers in a year CDS ka, in the month of April, and second one is in the month of September or something. So this was the first paper. Let's start with the first question. Pehla. Consider the following statements about the jowar cultivations of the Deccan. It covers practically whole of Maharashtra except the coastal Konkan coast. This is correct. The Pravara Godavari Valley seems to have been the nuclear zone. This is also correct. The large site of this culture yields evidence of shifting agriculture. I don't know if there is evidence of shifting agriculture. This is not given in the NCERT to take into consideration that thing. ये गलत हो रहा है और ये दो सही हो रहा है. So correct answer is this one and two. Next question we have is the capital city, Madurai, the capital city of Pandya Kingdom. Now here we have to revise as well as note down the facts which can be used parallelly for elimination or anything. So you need to make a note of this thing. Just not knowing the answer mugging up will do. यहाँ से notes बनानी है चीज़ों की and we have to keep these things and facts in our brain कि कहीं भी parallelly peripheral knowledge use हो गया तो it will be beneficial. So we have first, it has been described as in Madurai Kanchi as a large grand city enclosed by walls on three sides and Vagai river on fourth side. I have read something, ये कहीं मैंने पढ़ा है कि मदुराई के पास वैगई रिवर है, तो ठीक है, this is can be considered. Second वाला question, अर्थशास्त्र mentioned it as a center of fine cotton textile. कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है, ठीक है, बट अर्थशास्त्र में मेंशन है या नहीं है, आई डाउट. Third one, other literary sources describe it as major craft center. Madurai, craft, not sure. मदुराई में क्राफ्ट कभी नहीं था. इट इज नोन फॉर मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, आर्किटेक्ट्स. तो इसके वजह से करेक्ट आंसर इज दिस ए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज सवाई जय सिंह. आई डोंट नो, मत पर सीडीएस वालों को ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है. He learned the accuracy of European observations and obtained de la Hire tables from which he reproduced a refraction table. This is true. His astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phase of Venus. यहाँ स्वैप हो सकता है, Venus है या कोई और planet है और it is related to something. यूपीएससी का जो हैबिट होता है एंड यहाँ पे स्वैप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूशंस वर मेड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जैसे कि जंतर मंतर. सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट, मान कोतवाल रिलेटेड टू, ये क्लास 7th एनसीईआरटी में है. यू कैन गो एंड रीड द सोशल साइंस वाला. एंड हियर द आंसर इज राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर. नाउ वी नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट. म्यूजिक पे कोई काम है, मान कोतवाल, और इसको बनाए थे राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर. प्लीज डू अ 360 डिग्री एनालिसिस कि राजा मान सिंह के बारे में और क्या है इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री. देन तानसेन से रिलेटेड था ना कि उनको मियाँ तानसेन कहा जाता है एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ, इससे पहले इनका नाम क्या था, कहाँ पे वो रिसाइड करते थे, अमीर खुसरो के वर्क्स. प्लीज गेट अ नोट ऑफ इट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट आई गेट अ डिटेल्ड, मतलब ऑप्शन का भी अगली बार से एनालिसिस किया करूंगी. आई वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्कीम से रिलेटेड, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है. लेट्स स्टडी द फर्स्ट क्वेश्चन.
द पावर इज इनिशिएटेड बाय, देखिए यूपीएससी नॉर्मली क्या स्वैप करती है कि मिनिस्ट्री डिफरेंट दे देती है, बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कुछ उतना एक्सट्रीम बोल नहीं रहा है कि हाँ प्रॉपर रहने लायक समाज बनाएंगे जिससे डिसेबल लोग सम्मान के साथ रह पाएंगे। पर थर्ड, इट हैज प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नाउ इस स्कीम में जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए पेंशन का प्रोविजन है या नहीं, ये तो स्कीम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आई वेंट अक्रॉस तो पता चला कि नहीं, प्रोविजन पेंशन का कुछ नहीं है। सो हियर द आंसर इज 1 and 2। Now coming on to the next one, next sixth question. Which among the following was not a part of action program of non-cooperation movement? अब यहाँ से हमको सी, यू नीड टू अंडरलाइन, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देना कि हाँ गलती नहीं करनी, नॉट नॉट पूछ रहा है, पार्ट ऑफ नहीं पूछा, नॉट पार्ट ऑफ पूछा। ठीक, तो इसका मतलब ये है, इससे से तीन हमें फीचर पता चलेगा जो एनसीएम के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। पहला, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल। हाँ ऑब्वियसली एवरी पर्सन तक रीच करना ताकि पता चल सके, सो मतलब जागरूक बनाना था लोगों को इन टोटल, तो ये सही है। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश, ये तो हर जगह होता था, एनसीएम में होता था, सीडीएम में होता था। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, हाँ बहुत लोगों ने रिजाइन भी किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वर आस्क्ड नॉट टू टेक अप ब्रिटिश रिलेटेड कॉलेजेस इन स्कूल्स। फिर क्या कहते हैं, कितनों ने अपने नाइटहुड वगैरह वापस कर दिया था ना। ये टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट, नहीं इतना उड़नदुता नहीं मानेंगे, बिकॉज गांधी जी वाज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, तो हर चीज हमेशा पीसफुल होगी, तो ये गलत हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, आई वॉज नॉट सो मच अवेयर, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ों की वजह से इफ़ यूर ब्रीफ आपको आइडिया है कि एम क्या था, कैसे कैसे चीज़ें, you'll come to the answer. Next है Mauryan state and the forest people. The forest people were subjected to new forms of political and economic dominance and necessity to subordinate and assimilate them changes. ये कुछ उतना एक्सट्रीम लग नहीं रहा है, तो this one is correct. The state reorganized that the forest produced with the sole monopoly of the forest people. क्यों भैया स्टेट का कंट्रोल क्यों नहीं कर, आप हमको भी पता है कि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट वाले लोगों को इतने सालों तक तो राइट्स नहीं मिल पाए, इसके लिए इतने दंगे आज भी चलते हैं इतने, तो ये वाला तो गलत है। मतलब ब्रीफली हमें देखना है कि वो इशू जो एड्रेस नहीं हो पाया उसको इंडिपेंडेंस के कितने सालों के बाद भी एड्रेस नहीं किया गया, तो उस समय पे कैसे हो सकता था। थिंकिंग दैट इन माई माइंड आई वेंट विद दिस कि ये गलत है। तो अब स्टेट वाज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाँ एंड बनी ऑफ फॉरेस्ट, हाँ ये सब नॉर्मल है, कहीं भी फॉरेस्ट में ये करेंगे ही। द फर्स्ट पीपल कुड बी हार्नेस्ड टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज ट्रूप, स्पाइज एंड असिस्टेंट्स। देखिए हार्नेस्ड मतलब यूज्ड, इट इज गोइंग इन अ नेगेटिव टर्म। यूपीएससी हैज अ हैबिट, वो वर्ड्स के साथ प्ले करती है, तो हार्नेस्ड इसका आप गूगल करोगे वर्ड को तो विल गेट यूज्ड, मतलब नेगेटिव टर्म में ये वर्ड यूज हो रहा है, तो नहीं, वी आर नॉट, ह्यूमंस आर नॉट एनिमल्स, ठीक है। बोलता है ना विथ रिस्पेक्ट आप कुछ भी करा सकते हैं, बट नॉट कि सर्विंग एज अ, मतलब सर्वेंट की तरह कुछ करवा रहे हैं, तो दिस इज नॉट साउंडिंग ट्रू। तो इस हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच वन, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट हो गया, एट्थ वाले पे जाते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डायमंड माइनिंग, डायमंड की बात हो और पन्ना ना याद रहे, ये तो गलत बात है, तो दिस इज द पन्ना आंसर। नाउ नेक्स्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा, स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में था लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ कुछ फाइंडिंग्स हुई थी। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये बना था इन कोलैबोरेशन विद थ्री ऑर्गेनाइजेशन, देवर, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और ये सक्सेसर था हबल का ना, तो इसका आंसर था ये सन के ऑर्बिट करता है और अराउंड, और 15 लाख किलोमीटर अर्थ से दूर है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट जबरदस्ती का बनाया गया, ऑर्बिट्स द अर्थ, स्टेशनरी इन स्पेस, अराउंड द मून, मतलब बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब अटोमिक पार्टिकल्स, चारों के चारों सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है,
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट म्यून्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है और स्पिन हाफ है। कितना स्पिन? हाफ। ठीक, दीज आर द फैक्ट्स। पेरिफेरल जितना भी फैक्ट्स मिला प्लीज कीप नोटिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस, ये यूपीएससी में भी आया है बट इट वाज अ लॉन्ग प्लेजेड क्वेश्चन। क्यूबिट्स, ये क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। फोटोन 1, फोटो 51, प्लीज नोट इट डाउन। फोटो 51 ये डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। हिग्सन का हिग्स बाइसन का रेस्ट मास है 100 GeV। आई डोंट थिंक सो ये कभी आएगा बट स्टिल दिमाग में रखना है अपने आप को। वर्किंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक, इसका प्रिंसिपल क्या है? 14th वाले का, कैन एनीबडी गेस? The answer is resonant frequency in cesium atoms. Next, political analysis involves both, ऐसा कुछ ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बट फॉर योर नॉलेज इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लो। इट्स नीदर वन नॉर टू, ऐसा क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं। नाउ अगेन प्लीज कम ऑन योर टोज। यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट, कैन नॉट पूछा है, नहीं हो सकता। तो 16th का आंसर है ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का ऑटोनॉमी कैसे हो सकता है? टोटलिटेरियन रिजीम में सिविल सोसाइटी का कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, अगेन हियर नॉट करेक्ट। In world politics, hard power can be exercised by both states and other actors involving use of threat or coercion. Yeah, this is true. Globalization is necessarily economic, not cultural. ऐसा क्यों भाई? In itself it is wrong. Globalization मतलब globalization in all terms. So this is wrong. Washington Consensus. Anybody remembers Washington Consensus? This is correct. Intervention refers to a policy that seeks intervention in the market. Intervention in, नहीं sorry, I'm sorry. Here free market है ना, मार्केट को फ्री रखना है, तो ये गलत है, ये वाला गलत हो जा रहा है। तो अगर ये गलत हो गया नॉट, तो कहाँ कहाँ पे है? दिस वन एंड दिस वन। हमें पता है पहला वाला सही था तो ये एलिमिनेट कर दो। नाउ वी आर अप टू 50-50, 2 और 3 में तो करेक्ट आंसर हियर इज 2 and 3, फोर्थ सही है। ऑटो ऑटैर्की इज जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। दिस इज ट्रू। ये सारे फैक्ट्स हमें एक जगह नोट डाउन करना शुरू कर देना है। Next question. Under Part 3 of the Constitution of India, individuals can enforce rights guaranteed by this part when they are violated by the actions of the government authority. Obviously, this is true. And second one also is true. Both the statements are true. अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। IPCC, IPCC वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ, हाँ ये सबको देता है। इंडिया अग्रीड इन, इट हैज नॉट येट रेटिफाइड, इंडिया ने रेटिफाई कर लिया। क्वेश्चन गलत है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 20 वाला क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू राइट टू हैव अ लीगल एड इज करेक्ट? तो 20 क्वेश्चन का आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे दिया, ये भी सही है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द न्यूरेस्ट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ है बट प्रोसीजरली वो लोग ऐसा करते हैं, एज सच कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन और एनीवेयर इट्स नॉट मेंशन्ड, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली व्हेन दे आर इन न्यूज़। provides that everyone has the right to seek and enjoy another country's asylum from prosecution in respect of political crimes. This is something very basic, होना ही चाहिए। Declaration provides that everybody has the freedom from arbitrary deprival of nationality except for the freedom to change the nationality. See here what is this कि यहाँ twist है, freedom to change nationality है but ये first वाला नहीं है, ठीक है? So this is the correct one, this is wrong. Now we have 22 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन की जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। 22 का सी,
UNHRC. CR. It is HCR. Now 23rd question. 23rd में it blocks the this is question which I leave up to you. I want the answer in the comment section. 23 का very basic है, अगर आपने बहुत बार पढ़ा है तो I post the answer later. Now 21. ऐसा कौन सा है जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है? Thank you.